Hello each and everyone. This is the India Read. Once again, heartily welcome to our channel, the India Reads. And today we are going to start the history chapter number 8, part 2, Ashoka the Emperor who gave up a war, classics of NCERT. Yes, chapter name is chapter number 8, Ashoka the Emperor who gave up a war. Means in Hindi, सम्राट अशोक जिन्होंने युद्ध करना तैयार किया. And remember, this is part 2. Part 1 we have already done. Okay, and in part 1 we have discussed about the great kingdom of Maurya Empire that was founded by the great and ambitious administrator Chandragupta Maurya, and after that it was the dynasty, and after that his son Bindusar was there, and after that the great person, a great ruler, the one of the disciples of Mahatma Buddha, Emperor Ashoka, or known as Great Ashoka. Okay, and today we will discuss about the Great Ashoka. Yes, Ashoka a unique ruler, meaning अशोक एक विलक्षण शासक. And we know that in history there is a great name and fame of one of the greatest emperor named as Ashoka. इतिहास में अशोका का क्या स्थान है वो हम भली भांति जानते हैं. He was really a great king, and he was the grandson of great and ambitious administrator of Chandragupta Maurya. तो वो महान सम्राटशाली और प्रशासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो होता था, उसने शक्तिशाली साम्राज्य का जो थी स्थापना की. And why Ashoka is a unique ruler? Because he was also a very powerful king who has conquered all the administration and the area, and his kingdom even spread into the Central Asia. मतलब उसने जो युद्ध किए या अपने राज्य का विस्तार किया, उसके लिए वो जाना जाता है. And most important part is that he was the only king in history who has delivered the message of peace, unity and brotherhood. एक वो ऐसा राजा हुआ, एक ऐसा शासक हुआ जिसने शांति भाईचारे का जो था प्रचार भी किया. He also gives his time or helping hand in the spreading of region of Buddhism. महात्मा बुद्ध के धर्म को बढ़ाने में भी जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था. Okay, and he was the only king in the history who gave up the conquering after the war of Kalinga. तो उन्होंने he also renounced the war. उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था. He also stopped hunting, शिकार करना छोड़ दिया और लोगों को शांति का संदेश दिया. So that is why Ashoka is known as the unique ruler. Here we will discuss about the description of Maxine, who was the great ambassador. Yes. About the
masteries and ambassador. Okay, तो masteries एक दूत. And we will discuss about the person who is related to the Maurya Empire known as masteries and ambassadors. Ambassador जैसे एक जो दूत होता है उसको ambassador कहते हैं. ओके, एंड masteries was an ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. तो जो मैक्सनीज था, मैक्सनीज वाज एन एम्बेसडर, वो एक दूत था सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक दूत बनाकर भेजा गया था बाय द ग्रीक रूलर, यूनानी शासक जो कि पश्चिमी एशिया से था, नेम्ड सेल्यूकस निकेटर. इसका नाम था, शासक का नाम सेल्यूकस निकेटर. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये किसी भी एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे. व्हेन ही वाज इन द कोर्ट he has described the things that which have he seen. जो चीज़ें उसने देखी उसका डिस्क्रिप्शन उसने किया. एंड ही आल्सो टेल अस दैट the king was the central figure of the administration, or he was having a lot of powers. He was living the luxury life and he was spending a royalty life. वो शाही ज़िंदगी के साथ जीता था. उसके बाद बहुत ज़्यादा ताकत थी और शक्ति का मुख्य केंद्र धुरा जो था वो कहीं ना कहीं शासक था उस समय. एंड देर वर आल्सो एट दैट टाइम देर वॉज दी पाटलिपुत्रा, दी कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा, मॉडर्न बिहार. तो उस समय उनकी जो राजधानी थी, जो मुख्य राजधानी नगर या शहर था वो था पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न आधुनिक जिसको हम बिहार कह सकते हैं. ओके, एंड देयर वर दी पीपल वर लिविंग, देयर वर दी स्टोरीज ऑफ 2 और 3, यानी कि 2 से 3 मंजिली इमारतों के जो मकान बने होते थे. एंड देयर वर लॉट ऑफ ऑफिशियल दैट वाज हायर्ड बाय द किंग और एम्परर. शासक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स जो थे, ऑफिसर्स जो थे, उनकी भर्ती जो है की जाती थी साम्राज्य की देखरेख के लिए. एंड किंग वाज लिविंग इन द पैलेस. राजा जो था वो महल में रहता था. एंड दैट पैलेस वाज आल्सो मेड ऑफ wood as well as decorated with the stone carvings. Okay, palace made of wood and decorated with stone carvings. Okay, तो उसको जो राजे का उस समय शासक का महल था वो लकड़ी से बना होता था और उसको डेकोरेट किया जाता था, सजाया जाता था स्टोन कार्विंग के साथ. पत्थर को तराश के उसमें सुंदरता पैदा की जाती थी. एज वेल एज देयर वर दी गार्डन्स आल्सो एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. बगीचे भी थे और बड़ा शानदार ये जो नज़ारा था.
as there were, we have discussed, there were many official members were there. So even before taking the food of a king, there were special servants who taste the food for the safety of the protection of the king. और कुछ मुख्य सेवादार थे जो राजा की सुरक्षा को लेकर ये चीज़ ध्यान में रखते थे कि राजा के खाना खाने से पहले वो खुद खाना खाकर चेक करते थे कि शायद किसी ने उसमें कुछ मिला ना दिया हो। ये राजा की सुरक्षा का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। So next we will also discuss the main point of this chapter which turned the life of Emperor Ashoka. अशोका की ज़िंदगी में कहते हैं कि कैसा मोड़ आया था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी जो थी बदल के रख दी। दैट इज दी वॉर ऑफ द कलिंग। Now we'll discuss about the war of Kalinga. War of Kalinga. कलिंगा का युद्ध। Ashoka fought a war to conquering Kalinga, which was the part of coastal region of Odisha. This is also known as Bloody War, and इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अशोका fought a war to conquering Kalinga, which was the part of the coastal regions of Odisha. जो मॉडर्न हमारा आधुनिक जो ओडिशा है उसका जो समुद्री तट का इलाका है आसपास का, उस समय उसको कलिंगा के नाम से जाना जाता था। और कलिंगा पर जीत प्राप्त करने के लिए, उसको अपने साम्राज्य में स्थापित करने के लिए अशोक ने जो ये युद्ध किया था। एंड दिस इज आल्सो नोन एज ब्लडी वार। इस युद्ध को खूनी युद्ध भी कहा जाता है। ब्लडी वार, इसको खूनी युद्ध भी कहा जाता है। It was also the turning point of the life of Ashoka, and his last war. After that, he renounced war forever. तो ये एक खूनी युद्ध था जिसमें कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। इट वॉज आल्सो द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ द अशोका। सम्राट अशोक की जिंदगी का ये ऐसा मोड़ था जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया, ऐसा कहा जाता है। एंड हिज लास्ट वॉर, और ये उसका आखिरी युद्ध था, अंतिम युद्ध था। However, he has won all the wars that he has fought. जितने भी युद्ध उसने लड़े, उसने सारे युद्ध जीते, लेकिन हिस्ट्री में वो एक ऐसा एकमात्र शासक हुआ है जीतने के बावजूद जिसने अपनी ज़िंदगी में इस युद्ध के बाद, ये उसके जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ, और इसके बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया। आफ्टर दैट ही रिनाउंस्ड वार फॉरएवर। उसने ये प्रण लिया कि वो ज़िंदगी में अब कभी भी युद्ध जो है वो नहीं करेगा। ओके, नाउ विल डिस्कस द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका अबाउट द कलिंगा वार।
descriptions of Ashoka. About Kalinga. Okay, and as we have discussed previously that he has carved his message on the stones, and his audience or instructions to the people and for his son and grandson so that they can follow the rules and regulations. उसने खुदाई करवाई थी पत्थरों पर, चट्टानों पर, शिलालेखों पर, अपने संदेश खुदवाए थे। तो उसने अपना संदेश जो है कलिंगा के बारे में भी जो है अपना स्टोन्स के ऊपर, शिलालेख के ऊपर लिखवाया था, जिसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर अशोक ने ये कहा, I had conquered Kalinga after 8 years becoming the emperor। तो इसमें ये शुरुआत जो की है सम्राट अशोक ने, वो यहाँ से की है कि उसने जो खुदाई करवाई और अपना संदेश दिया लोगों को। उसमें सम्राट अशोक ये कह रहे हैं कि आई हैव कंक्वेयर्ड कलिंगा आफ्टर 8 years बिकमिंग द एम्परर। शासक बनने के बाद 8 साल बाद उसने कलिंगा के ऊपर जो अपना कब्जा किया, एंड ही हैड अटैक्ड ऑन कलिंगा एंड फाउट अ वॉर एंड ही हैज आल्सो वॉन दिस वॉर। वो इस युद्ध को जीत भी गया और उसका कलिंगा के ऊपर अधिकार भी हो गया। बट व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस दैट he has gave up the conquered area। लेकिन जीतने के बावजूद उसने अपना जीता हुआ इलाका त्याग दिया, as well as he renounced the war, he renounced for hunting and he became the strict vegetarian। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया, युद्ध करना भी छोड़ दिया, वो जो था वेजिटेरियन बन गया, ठीक है, शाकाहारी बन गया। and he became one of the great disciple of महात्मा बुद्ध and he adopted बुद्धिज्म। और किस तरह से उसने महात्मा बुद्ध के धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को, बुद्ध धर्म को, और उसका बहुत बड़ा शिष्य और पैरोकार वो जो था बन गया। तो उसने यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया कि जब वो शासक बना तो उसने 8 साल के बाद कलिंगा के ऊपर हमला किया और जीत भी प्राप्त की। बट इट वॉज अ वेरी ब्लडी वॉर। which turned my life and I felt sad। तो उसने कहा कि जिसने ये पुण्य युद्ध था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, एंड आई फेल्ट सैड, और मैं बड़ा उदास और दुखी रहने लगा। ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड that in this war about 1 lakh men were killed, 1,50,000 injured, and thousands were captured and retained as slave। ये युद्ध इतना भयानक था कि इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1,50,000 के करीब लोग जख्मी हो गए, और हजारों लोग जो थे वो बेघर हो गए या फिर उनको गुलाम बनाकर जो है रख लिया गया था। उनकी जिंदगी जो थी दयनीय बन गई। देयर लाइफ बिकेम वेरी पिटिएबल। सो इट वाज अ वेरी हॉरिफाइड फॉर द अशोका। तो अशोका के लिए जो ये सीन था, दैट साइट वाज मच हॉरिफाइड, एक डरावना दृश्य था। सो ही टेक ओथ दैट ही विल नेवर फाउट अ वॉर अगेन,
he renounced the war, he stopped hunting and he became the strict vegetarian. और उस दिन के बाद वो अपना जो था पूरी तरह से युद्ध करना उसने छोड़ दिया, ये प्रण ले लिया, and even he given this guidance to his sons and grandsons. तो वो यहाँ पे लास्ट पे उसने क्या लिखा, he is giving inscriptions for the future, so that my son, grandsons and people can follow these instructions. तो यहाँ पर उसने आगे अंत किया कि इस तरह से ये जो उसने इंस्क्रिप्शन जो खुदाई करवाई, जो लिखवाया चट्टानों के ऊपर अपना संदेश, वो दुनिया को यही संदेश देना चाह रहा था कि भविष्य के लिए कि ये इससे प्रेरणा लोग ले सकें, चाहे वो उसके बेटे हैं, चाहे वो उसके पोते हैं, चाहे लोग हैं, तो वो प्रेरणा ले सकें कि खून खराबा करने में कुछ नहीं है, ठीक है, किसी को कष्ट पहुंचाने में कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई ही अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म विच वाज बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस. इसीलिए उसने शायद महात्मा बुद्ध के धर्म को अपना लिया था, जो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के ऊपर आधारित था. ओके, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस विच इज नोन एज अशोका's धम्म. Now we'll discuss about Ashoka's Dham. Okay, so firstly we'll discuss that Dham is the Prakrit word in Sanskrit termed as dharma. ओके, तो इसका मतलब ये होगा अशोक का धर्म. So after the bloody war of Kalinga, as we have discussed that, there was the great impact that affected on the mind of the Emperor Ashoka. अशोका के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इसका गहरा असर पड़ा था. So he was firstly he was in Hinduism, he was a Hindu, but after that he adopted the Buddhism. वो पहले हिंदू धर्म से संबंध रखता था, लेकिन कलिंगा के युद्ध के बाद जब वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन गया, उसने शिकार करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, तो उसने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था. बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस, ये अहिंसा के ऊपर जो है तर्क देता, शायद इसी वजह से. बट ही नेवर प्रीच्ड द पर्टिकुलर रीजन ऑफ बुद्धिज्म इन हिज एरिया और रीजन, लेकिन अपने इलाके या क्षेत्र में उसने बिल्कुल भी ये फोर्स नहीं किया लोगों को कि इस धर्म को ही अपनाना है. बट ही हैज़ गिवन द गुडनेस ऑफ वैराइटीज of the kind of the religion that is known as Ashoka's Dham. Actually he has started the new religion which is the term as Ashoka's Dham. उसने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, जिसमें जो शॉर्ट कमिंग्स धर्मों में आ गई थी उसको ख़त्म किया गया. As we know that in Hindu religion there was the impact of the Brahmins or priests, and they were doing so many type of rituals and traditionals time to time. वो अलग अलग they were also performing so many sacrifices. वो कई प्रकार के जो है वहम भरम करते थे, अपने कई तरह के रीति रिवाज करते थे, कई तरह की पशुओं की बलि कुर्बानियाँ दी जाती थी. एंड नाउ द किंग हैड स्टॉप्ड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, these type of traditions or rituals, and he preached the message that there is a life even in plants and insects
we should not harm anybody, and this is the message of this dham, which is known as अशोका's धम, जिसको अशोका का धम कहते थे। धम हमने पहले भी चर्चा की कि प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसको अगर संस्कृत में अगर हम बात करें तो उसका मतलब होगा धर्म। तो इस एक ऐसे धर्म का उसने लोगों के जो है सामने आदर्श रूप रखा। एंड फॉर दिस पर्पस ही हैज़ अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स, उसने कुछ इस मकसद के लिए कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की। एंड दे वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। He has also carved these ordinance or instructions on the stones, pillars for awareing the people, and a command to the official that read the message for those who are not able to read it. तो उसने अपने जो ऑफिशियल्स थे, अपने ऑफिसर्स थे, उनको ये भी कहा कि ये मैसेज जो है हर जगह पर, शिलालेखों पर, चट्टानों पर, अभिलेखों पर लिखवाना है, और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, जो पढ़ने के योग्य नहीं हैं, उनको ये पढ़कर सुनाया जा सके, सो दैट पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन, ताकि लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं और अपनी इससे वो है प्रेरणा ले सकें। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट अशोका's मैसेज। अशोक का संदेश। So now we have read a lot about Emperor अशोक। हमने सम्राट अशोक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ये उनका शायद हम लोग कहेंगे it was the last message given by the great emperor अशोक। अशोक का ये आखिरी मैसेज जो संदेश था, जो उसने पूरी दुनिया को दिया। ये संदेश क्या था? As he has adopted the Buddhism and he has given the variety of the new religion that was full of the goodness, जो एक अच्छाई से भरा हुआ था, named as अशोका's धम, जिसको अशोक का धम या अशोक का धर्म या अशोक का नया धर्म भी कहा जाता है। So he has given the true path to the audience of the people, उसने लोगों को जो है सही रास्ता दिखाया। He spread the message that there is a life even in non-living things, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें भी जान है। We should not tease anyone, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। We should spend the life with a non-violence that should be based on the non-violence, एक ऐसी ज़िंदगी हमें स्पेंड करनी है, बितानी है, जो अहिंसा के ऊपर निर्भर करती हो। And the true religion is that religion which didn't cut man from cut, or which did not do any type of discrimination among men and men, एक आदमी या दूसरे आदमी या कुछ लोगों के बीच में जो भेदभाव ना करता हो, वही सच्चा धर्म है। ओके, एंड religion is not that a religion that praises itself and criticizes the another, और वो धर्म नहीं है जो अपनी प्रशंसा करे और दूसरों की आलोचना करे। So that there was the freedom to adopt any religion in the region of Emperor Ashok. People can adopt any religion, but it should be based on the principles of Ashok Dham, लेकिन ये अशोक के जो नियम थे उनके मुताबिक होना चाहिए था। एंड और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू also praised Emperor Ashoka for his precious views। और जो हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी जो था सम्राट अशोक की प्रशंसा की उनके कीमती विचारों के लिए। एंड ही होप दैट दे विल गाइड द पीपल
फॉर टिल सेंचुरीज, कई सदियों तक उनके ये विचार जो लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज as we know that we are living in India and we are the citizens of India, and in India there is a democratic, India is a democratic country. India is a democratic country and democracy is the government of the people, by the people, for the people, according to Abraham Lincoln. लोकतंत्री सरकार वो होती है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी जाती है. दिस इज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी. एंड इन आवर कंट्री इंडिया इज डिक्लेयर्ड आल्सो एज अ सेकुलर स्टेट. इंडिया इज आल्सो सेकुलर स्टेट. इसको हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य. तो मैं आपको ये आगे का पॉइंट इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी द मैसेज दैट हैव बीन गिवन बाय द ग्रेट एम्परर अशोका हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. कि हमारे संविधान में भी सम्राट अशोक के विचारों को शायद मान्यता दी गई है. इसीलिए भारत को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य. बिकॉज इन इंडिया वी कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन बट इट शुड बी इट शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन. हम भारत के निवासी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसके लिए हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन वो हमारे संविधान के उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए. और एक लास्ट पे जो हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी, वो ये है कि अबाउट रामपुरा बुल. Rampuras bull is a fine polished stone sculpture found in Rampura, बिहार. तो रामपुरा जो है दैट इज इन बिहार. And there was found a polished stone sculpture of a bull, जहाँ पर एक बैल का एक सुंदर एक मूर्ति पाई गई है जो पत्थर से तराशी गई है. That is found in Rampura in Bihar, and today it has been settled in a Rashtrapati Bhavan, New Delhi. तो which may be or probably belong to the Maurya Empire, जिसका संबंध शायद मौर्य एम्पायर से था और इसीलिए रामपुरा बिहार में मिला है और इसको राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है. एंड इट आल्सो टेल अस अबाउट द ग्रेट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी अबाउट द मौर्य एम्पायर. तो इससे हमें मौर्य एम्पायर की कला और इंजीनियरिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है. दे वर फाइन ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ में उत्तम थे. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understand this chapter very well. So if you are gaining the knowledge, so please like and subscribe our channel. Thank you very much.